Hello, good morning students. This is Bhupendra. Today in this video I'm going to discuss about a poem on killing a tree. This poem from the book Beehive for the class 9th. And this poem written by Giv Patel, as you clearly see here. And about the poem, this poem is very sensitive point of view that about nature. The poet tried to convince the readers not to destroy trees and nature. Killing a human being is equal to killing a tree. Uh, it means that when he says that plants take sunlight as a human being takes sunlight, the human being takes water, air, and nutrients from the soul. Gradually, you can say the tree also uses such things for life. So naturally, this poem is very relevant to the nature poem, and it is give us important lesson how we can save a tree. So let's start our poem. Where we have our poem. This is if I talk about the poem. Firstly, here we have. So it takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So it talks about when it's a new word is for you, that is jab. Jab means that sudden rough blow, अचानक से प्रहार करना, that is jab of knife. And leprous hide, you can see the leprous hide mean discolored bark. Discolored bark जब जो पेड़ होते हैं उनको काटने पे, छीलने पर उसके अंदर की जो एक लेयर निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड लेप्रियस हाइट. सो इट टेक्स मच टाइम टू किल. कहता है कि पेड़ को मारने के लिए ज़्यादा समय लगता है, यानी कि समय ज़्यादा लगता है एक पेड़ को मारने के लिए. नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट. केवल एक चाकू के प्रहार से एक पेड़ है वो मर नहीं सकता. तो केवल हम पेड़ को काटें और चाकू से कुरेदें या काटें उसको, तो इससे पेड़ की मौत नहीं होती. राइट. Knife will do it. It has grown, just here I use this, it has grown, slowly consuming the earth. जब हम इसको काटते हैं तो वो धीरे धीरे जहाँ से काटा गया था वहाँ से धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है. कंज्यूमिंग द अर्थ मतलब अर्थ से न्यूट्रिशन लेता है और फिर से ये उसको उस चीज़ को यू कैन से दैट जिस जगह से हमने उसको काटा है तो वहाँ से फिर से वो रूटेड होने लग जाता है. राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट. और ये पेट से फिर धरती से न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद ये फिर से हरा भरा हो जाता है क्रस्ट से. क्रस्ट जो बताया मैंने कि धरती के ऊपर से, धरती के नीचे से ये न्यूट्रिएंट्स लेता है और फिर ये हरा भरा हो जाता है. अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, ये क्या लेता है अर्थ से? सालों की सनलाइट, एयर, वाटर आउट ऑफ लेप्रियस हाइट्स प्रोलिव्स. और ये जो अपने इसकी जो स्ट्रॉन्ग जो इसकी जो ये क्या लेता है? सनलाइट, वाटर, एयर, और इससे बहुत स्ट्रॉन्ग इसका जो ट्रंक बन जाता है और उसमें न्यूमरियस लीव्स पैदा हो जाती है. स्प्राउटिंग का मतलब है न्यूमरियस, काफ़ी ज़्यादा की संख्या में. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, हियर वी हैव it mean that a simple cut of knife does not destroy a tree, does not destroy a tree. And here we have just a moment. And a tree grows gradually, it's rooted in the soul, it attached from the earth. And a plant takes nutrition from the soul to grow into a big tree. The tree is firmly bound with the soul. That means that rooted of the tree is firmly attached with the soul, and it doesn't simply pull out.
by cutting the tree by knife. So it means that it's taken sunlight when it takes nutrition from the earth. It takes sunlight, water and air to grow into a strong trunk and have numerous leaves. After cutting the tree with the knife, we can say that tree automatically reborn, and it's managed to get into its previous shapes. So that is the point where we can say that if we try to harm the tree with the help of you can say knife, another thing, tree automatically grow and never destroy completely. This is the first stanza we talk about, that the life of tree, how it's reborn again and not simply destroy. Second one stanza कहते हैं, so hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature broad, which if unchecked will expand again to former size. कहता है कि जो ह्यूमन जो है वो हैक एंड चॉप करता है. हैक एंड चॉप का मतलब क्या होता है? हैक एंड चॉप का मतलब है कट रफली, बार बार उस पर हैवी प्रहार करके उसको काट देता है. तो ह्यूमन बीइंग जो है जो पेड़ों को काटता है, उसकी बार को काटता है, उसमें जो पेड़ों की को छीलता है, उसको काटता है, पीसेस टुकड़े टुकड़े कर देता है. बट दिस अलोंग वोंट डू इट. परंतु केवल ये चीज़ करने से पेड़ जो है वो मरता नहीं. केवल ये काफ़ी नहीं होगा पेड़ को मारने के लिए. नॉट सो मच पेन विल डू इट. और जो पेन की बात कही गई है, नॉट सो मच पेन विल डू इट, और ये जो पेन है, ये डू इट का मतलब है पेड़ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना. ये जो पेन दिया जाता है ह्यूमन के द्वारा, वो पूरी तरीके से पेड़ को किल नहीं कर सकता. ब्लीडिंग बार्क विल हील. और जो ब्लीडिंग बार्क है, जिसमें काटने पर जो पेड़ के हम छीलते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा एक लिक्विड टाइप का जो निकलता है, वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है, भर जाता है, हील हो जाता है. समय के साथ साथ वो जो है वो ठीक हो जाता है. द फ्रॉम 1 minute. And from close to the ground will rise curled green twigs. और ग्राउंड से जैसे पेड़ जो अटैच होता है, उसके पॉइंट जो लगे रहते हैं, फ्रॉम क्लोज टू द, क्योंकि ग्राउंड से बिल्कुल वो क्लोज होता है, वहाँ से विल राइज, वो उगना शुरू हो जाता है. कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और उसके छोटे छोटे क्या बन जाती है, ब्रांच अब धीरे धीरे उगना शुरू कर देती है. मिनिएचर बोट्स, और जो छोटी छोटी जो बोट्स होती हैं, कोमल कोमल जो पेड़ों में जो होता है कोमल कोमल, उसमें बोट्स निकलने लग जाती हैं. विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज. अगर हम उसको इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड, और हम फिर उसको धीरे धीरे क्या देखते हैं, अगर हम उसको अनचेक्ड विल एक्सपेंड, अगर हम उसको ध्यान नहीं देंगे उसकी तरफ, तो वो धीरे धीरे अपने उसी साइज़ में वो पेड़ पूरा पूरा बढ़ जाता है. It means that humans cut and chop the bark of tree into many pieces, but that is not sufficient to destroy the tree. It means that the point of the tree which gets cut and which given cut by a sap of a knife, with the help of knife, just like human beings bleeds, the tree also bleeds. Gradually this would heal from their new branches, and again it's come into its former size. तो ये फिर से दोबारा से अपनी उसी फॉर्मर साइज में आ जाता है पेड़. यानी कि पेड़ को हम जब काटते हैं, उस पर प्रहार करते हैं, तो उसको पेन होता है, लेकिन वो पेन उस पेड़ को मार नहीं सकता. और जो उसके पेड़ को काटने के बाद जो उसमें एक तरल पदार्थ सा निकलता है, ब्लीडिंग बार्क में से जो उसमें पदार्थ निकलता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको फिलअप कर देता है. यानी कि वो जो घाव है, या वो जो 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 उसको डिस्ट्रॉय किया गया था हिस्से को, वो अपने आप ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है, भर जाता है. क्योंकि वो ग्राउंड से बिल्कुल पास होता है, तो वहाँ से उनकी नए नए ट्विग्स, कोमल कोमल टहनियाँ
ये निकलने शुरू हो जाती है और पत्ते हरे भरे निकलने शुरू हो जाते हैं, और फिर हम इसको धीरे धीरे देखेंगे कि अपने उसी फॉर्मल साइज में ये आ जाता है। इसके बाद थर्ड में देते हैं नो, द रूट इज़ नॉट टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज़ टू बी रॉप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप आउट का मतलब है चॉप्ड आउट, और pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Let's see, यहाँ से हम देखेंगे नो नहीं, क्या नहीं, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, अगर उसको पेड़ को मारना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो रूट्स हैं उसको धरती से पुल्ड आउट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, तभी हम इस पेड़ को मार सकते हैं। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ का मतलब है ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ रूट्स इन द अर्थ, जो रूट्स होती हैं पेड़ की वो बिल्कुल किससे लगी होती हैं, धरती से बिल्कुल अटैच होती है, सिक्योरली अटैच होती हैं, वो तब तक वो पेड़ नहीं मरेगा जब तक हम उसकी रूट्स को धरती से अलग ना कर दें। इट इज़ टू बी रॉप्ड, उसको रस्सियों से बांधा जाता है और उसको बाहर खींचा जाता है। पेड़ को जब देखो अपने जब पूरे पेड़ को निकालते हैं तो उसको रस्सी से बांधा जाता है, टाइट कसा जाता है, और फिर उसको स्नैप आउट किया जाता है, यानी इसको बाहर निकाल कर चॉप आउट किया जाता है। जब पूरा पेड़ बाहर निकल जाए तब उसको काटा जाता है। उसको मारने के लिए ऐसी चीज़ें का यूज़ किया जाता है, ऐसे तरीके का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं, और पुल्ड आउट इंटायरली, पूरे का पूरा पेड़ बाहर निकाल दिया जाता है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव का यहाँ पर मतलब है जो धरती के अंदर से, जहाँ की उनकी जो रूट्स रूटेड होती हैं वहाँ से उस पेड़ को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और जो ताकत जो पेड़ की जो उसके रूट्स में थी, जो धरती से जुड़ी हुई थी, वो आखिरकार एक्सपोज हो जाती है, वो उसका खुलासा हो जाता है या वो बाहर निकल जाती है, यानी उसका जो पूरी तरीके से कंप्लीट डिस्ट्रॉय करने का जो एक जो वे था वो पूरी तरीके से सामने आ जाता है। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव, और जो उसमें से जो निकलता है एक प्रकार का एक लिक्विड टाइप में, वाइट और गीला गीला सफ़ेद कलर का, द मोस्ट सेंसिटिव, वो बहुत सेंसिटिव हिस्सा होता है उस पेड़ का। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, वो धरती के काफ़ी वर्षों से ज़्यादा धरती के अंदर वो हिस्सा रहता है पेड़ का। जब वो बाहर निकल जाता है तो इसका मतलब वो पेड़ जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन द स्टेंजा द पोएट सेज दैट इन ऑर्डर टू किल ए ट्री it has to be uprooted, the tree has to be uprooted, one has to be separated the tree from the earth which supports it. It means that when the tree roots supports the earth, the roots of the tree bind the tree with the soul in the pit of the earth. From there, the most sensitive and hidden part of the tree, the roots have to be detached. The roots are white in color and are damped. It means that when we try to kill a tree, we have to pull out completely the tree out of the earth and its roots. By easily we can do with the help of a rope. We tied the rope with the tree and we pulled out the tree and we cut the pieces of the tree. So that if we want to kill completely the tree, this is the easiest way to kill the tree, right? Next, this is the last stanza. Then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. It means the scorching and choking का मतलब क्या होता है, ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग रूटेड। जैसे ही हम उसको जड़ों से बाहर निकाल देते हैं पेड़ को, तब उसको सुखाते हैं। तब किसकी बात आती है, अब उस पेड़ के पीसेस कर लिए, पेड़ के पीसेस करने के बाद हम उसको धूप में सुखा देते हैं। सन और एयर की वजह से जो उसके जो हार्ड पार्ट थे वो धीरे धीरे ब्राउन सूखने लग जाते हैं। कुछ हिस्से जो वो कैसे क्या कर सकते हैं, नरम थे, वो हार्ड होने लग जाते हैं। पेड़ जो होता है वो जो सूखने के बाद वो थोड़ा सख्त हो जाता है,
और उससे पहले कि पेड़ की जो टहनियाँ वो बड़ी नरम होती हैं। ट्विस्टिंग, और उसकी जो पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, वो मुड़ने शुरू हो जाते हैं। पेड़ की कोमल कोमल जो टहनियाँ होती है वो मुड़ने लग जाती हैं। एंड देन इट्स डन, और ये काम हो गया और पेड़ आखिरकार मर जाता है। वंस द ट्री हैज़ बीन अपरूटेड देन ग्रेजुअली इट withers and you can say dries up. Then the withers and dries up. Withering and dry, the same meaning here. Once you can say, once the tree has been uprooted, the gradually it wither and dries up with the action of heat and air. The heat and air dries up the uprooted tree, and the trunk will become brown, twisted, and will become harder. Finally, the tree will die in this way. This is the way how we kill a tree completely, and Giv Patel will not allow us to kill the tree in this way. So he give us the techniques how we kill a tree, and it simply not die by simple jab of knife and give you can say that pain to the tree. This is not way of dying the tree, killing the tree, sorry. So what is the rhyme scheme of the poem? You can see clearly see that tree, knife, grown, earth. This is not a rhyme scheme, it is completely free verse. तो ये पोएम जो है वो किस लिटरेरी डिवाइसेस में क्या क्या है, तो यहाँ पर राइम स्कीम नहीं है कोई भी इस पोएम में, ये फ्री वर्स में लिखी गई है। और यहाँ पर कुछ मेटाफर भी दिए गए हैं, कुछ एलिट्रेशन भी दिए गए हैं, रिपीटिशन भी दिया गया है। बात करें इसमें एलिट्रेशन की बात करेंगे तो देखते हैं ब्लीडिंग बार्क, बी ब्लीडिंग और बी फॉर बार्क। What is the meaning of when we use say repetition, alliteration? Alliteration होता है repetition of consonant sounds. कॉन्सोनेंट साउंड में हम देखते हैं तो यहाँ पर ब्लीडिंग और बार्क देखेंगे। और देखते हैं इसमें कोई एलिट्रेशन मिलता है तो आपको चेक इट आउट। पेन, वोंट, ब्लीडिंग, क्लोज, आई थिंक दिस इज yes, there is also one more alteration, white and wet. This is also alteration. W साउंड यहाँ पर दिखाया, वाइट W, वाइट फॉर W साउंड से और वेट भी W साउंड से। यहाँ पर रिपीटिशन और देखते हैं, जो रिपीटिशन करता है, रिपीटिशन वर्ड होता है जो सेंटेंस में रिपीटेड हो जाता है और उस पर जोर दिया जाता है। तो बार बार कोई वर्ड जो है वो रिपीट अगर होता है तो कोई देखते हैं इसमें कोई भी वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है या नहीं है। देखो यहाँ पर कुछ वर्ड जो हैं, चेक इट आउट करते हैं, इसको देखते हैं अगर कुछ वर्ड होता है। सो मुझे लगता है कि इसमें कुछ यस, यहाँ पर दो वर्ड जो मैं बता देता हूँ। एक वर्ड जो है पुल्ड आउट, यहाँ पर पुल्ड आउट है और यहाँ पे पुल्ड आउट है, तो और भी जगह पे पुल आउट हो सकता है। तो पुल्ड आउट है, यहाँ पर रिपीटिशन हुआ है शब्दों का। और यहाँ पर मेटाफोर भी है, तो यहाँ पर देखते हैं कि और क्या क्या है। आप सर्च करोगे इसमें लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस पोएम।